So, good evening, everybody. Welcome, everybody, to yet another book launch event. My name is Yukta, your host for today, and I'm super excited to launch a very engaging book today. So, the book that we are launching today directly speaks about anybody who's interested in real estate, investment, and building wealth through practical knowledge rather than complicated theories. The book we are celebrating today is titled as Renomics Street Smart Strategies for Indian Investors. So, before we start off with today's event, I would like to tell you a little brief about the author who will be joining us. So, the author who will be joining us today is Mr. Varnik Paliwal. Varnik brings together a rare combination of technical expertise, legal knowledge, and practical investment experience in the world of real estate. He is a civil engineer who later became chartered engineer, giving him deep insights into construction quality and structural integrity. In addition to that, he is also a qualified advocate enrolled with Madhya Pradesh State Bar Council, allowing him to understand the legal complexity involving in property transaction. Beyond his professional roles, Varnik is also active real estate investor who has been managing his family's diverse property portfolio for many years. Through his experience, he has gained valuable insights into how real estate actually works on ground. So please welcome Mr. Varnik. So, yeah. Hi, Varnik. How are you? I'm good. Hi, Yukta. What about you? Absolutely doing great. So, how's the feeling? So, today we are here to finally launch your book. So, how's the feeling? I would like to know. Very Congratulations for that. thank you, and I'm very much excited about this book launch. And it's a struggle of my years, a struggle that I have written in this book. So I hope everyone likes it. Great, great. So I think this book actually, as I told in the introduction as well, this is for people who would like to practically have the practical knowledge about how real estate work. So I think whatever insights you'll be sharing us with today would be really helpful for the readers, right? Yeah, it's definitely going to be beneficial for someone who is interested in real estate, and I can Great. say anyone who is interested in this thing. Absolutely great. So, Varnik, one question that I would like to ask. So, what inspired you to write Renomics? What inspired you to write your book? The inspiration behind Rheonomics is very personal to me. My father actually didn't inherited any wealth, but through patience and practical wisdom, he created a real estate portfolio from the ground up. So he was the personal reason why I wrote this book. It's a tribute to him for his journey. And apart from this, I have seen many of my friends and colleagues who struggle in real estate deals, like where to invest, how to invest. एंड इसके अलावा युक्त आपने एक चीज देखी होगी हम एज अ इंडियन वी इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एज अ सेविंग हम एक इमरजेंसी के दिन के लिए रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं पैसा लगाते हैं तो मैंने कई अपने रिलेटिव्स को या क्लोज वंस को देखा किसी डील में स्टक होते हुए एंड जैसे कि कह लीजिए बच्चे की शादी का समय आया या पढ़ाई का समय आया जिसके लिए उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था एंड उसी टाइम वो प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं हो पा रही है सो इसका रीजन कहीं ना कहीं जब हम बैक लिंक में जाके देखेंगे कि क्या रीजन है तो हम देखेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट एट द इनिशियल स्टेज ही गलत था तो मैंने जब उनको स्ट्रगल करते हुए देखा तो आई थॉट कि देयर इज अ गैप इन मार्केट एंड आई शुड राइट अ बुक फॉर समवन टू अंडरस्टैंड द मार्केट डीपर और प्रॉपर्टी का बिजनेस आपको गाइडेंस देने वाले बहुत मिल जाएंगे बट मेरा ऐसा मानना है कि आपके पैसे का ख्याल आप ही सबसे ज्यादा रखेंगे तो आपको समझ होनी चाहिए इस मार्केट में पैसे लगाने की बहुत पहले शायद इसकी सो दैट्स व्हाई आई रोट दिस बुक एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि रियल एस्टेट की सक्सेस पैसे पे डिपेंड नहीं करती इट्स डिपेंड्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मार्केट एब्सोल्युटली सो राइटली सेड बिकॉज जैसे कि आपने ठीक कहा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नोबडी एल्स वुड टेक केयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट वी डू सो वी आर होल्सो आई वुड से रिस्पॉन्सिबल एंड एज इंडियंस आई वुड से कि शायद अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है दैट हाउ द इन्वेस्टमेंट कुड वर्क लाइक राइट सो आई थिंक दिस बुक विल एक्चुअली गिव अ लॉट ऑफ इनसाइट्स एग्जैक्टली किस तरीके से राइट इन्वेस्टमेंट प्लेस होनी चाहिए राइट जी and या also while the title of the book is again very unique, right? So I would like to understand you what does this concept represents for you, Reonomics? Actually, Rheonomics is a term that has been coined by me. It's a sum of real estate and economics.
As you know, in economics, we study about the scarcity of material, demand, supply, buyer behavior, seller. So all these things, all these factors affect real estate very much. And I would say real estate is the only business in this world who get affected by almost everything that happens in this world, like geopolitical tensions, or even like we consider today Iran-Israel conflict. It is going to affect the real estate market. गवर्नमेंट पॉलिसीज आपने देखा होगा कहीं पे कोई रोड निकल गया है प्रॉपर्टी में एकदम से बूम आ गया है या कोई पर्टिकुलर सेक्टर है जिसमें तेजी आई है तो कहीं ना कहीं जब बहुत ज्यादा पैसा किसी के पास आता है तो एक रियल एस्टेट एक बेहतर विकल्प बन के उसके सामने आता है निवेश करने के लिए सो हर चीज जो आप देखते हैं नियर बाय में वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट को अफेक्ट करती है सो दैट्स व्हाई आई यूज द टर्म रियल एस्टेट प्लस इकोनॉमिक्स रियोनॉमिक्स एक्चुअली मेरी कंपनी का भी नाम यही है तो मैंने इसी नाम को कंटिन्यू करना बेहतर समझा फॉर गुड। ग्रेट। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इंसाइटफुल बात आपने कही कही दैट एनीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द प्रॉपर्टी रेट्स एग्जैक्टली। सो अगेन कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक चेंजेस एंड देन प्रोबेबली रियल एस्टेट डेफिनेटली इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, राइट। एंड ऑल्सो जब मैं इस बुक को पढ़ रही थी तो व्हाट आई नोटिस दैट इसमें रादर देन प्रैक्टिकल नॉलेज आप मतलब रादर देन थियोरेटिकल नॉलेज आपने इसके अंदर प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज डाली हैं। सो Yeah. व्हाई डू यू थिंक लाइक व्हाट हाउ वाज दिस अप्रोच बेनिफिशियल? सो इफ यू कुड जस्ट टेल मी दैट। I believe real estate is very much local market. So if you are going to do any kind of theoretical model or a theoretical practice, just be like do in assets or stocks, it is a complete failure in real estate market. क्योंकि आप लंदन में बैठा आदमी शायद मुंबई या भोपाल जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करने नहीं आएगा यहाँ का लोकल ही बायर होगा सो वी शुड अंडरस्टैंड हिम पर्टिकुलरली एंड द लोकल सिनारियो लाइक क्या डेवलपमेंट हो रहा है नियर बाय यदि कहीं पे कोई चीज का डेवलपमेंट आता है गवर्नमेंट के थ्रू बट वो इस पर्टिकुलर लोकेलिटी को इफेक्ट नहीं कर रहा तो इसके अंदर प्राइस चेंज नहीं आएगा आप देखेंगे तो मनी का फ्लो कैसे आ रहा है क्या रीजन है ग्रोथ के ये अंटिल अनलेस यू हैव अ ग्राउंड रिसर्च यू आर अनेबल टू डू दैट और जब तक आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते व्हाट विल बी द फ्यूचर हाउ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस मार्केट सो यू शुड हैव अ ग्राउंड अप्रोच लाइक एक एक लोकेलिटी को जाइए या इवन आज मैं भी यही करता हूँ कि किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज से पहले आई स्पेंड एटलीस्ट 5 to 10 days just to visit that particular property and analyze the market, the behavior of people, like what are the nearby localities, क्या रेट होगा कंपेरेटिव रेट सो ऑल दिस थिंग्स इफेक्ट सो आपको भी एक टेंजिबल चीज है सो यू नीड फिजिकल हार्ड वर्क फॉर दिस थिंग इट्स नॉट ओनली अबाउट मेंटल हार्ड वर्क। एब्सोल्युटली बिकॉज़ आई थिंक जब एग्जांपल्स होते हैं, जब रिलेटेबल सिचुएशंस होती है तो ऑडियंस आई वुड से मोर रिलेट कर पाती है दैट हाउ दिस सिचुएशन कैन बी मोर रिलेटेबल। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी ग्रेट स्ट्रैटेजी जो आपने अपनाई थी। एंड जैसे कि व्हाइल आई वाज इंट्रोड्यूसिंग यू एज़ वेल, सो आपकी जो फैमिली की जर्नी है, सो आई थिंक दैट हैज़ एक्चुअली प्लेड अ वेरी बिग रोल, राइट? So how do you think these experiences have shaped up, in your perspective on investing? So how does it has happened? Okay. One of the most important thing that my father, or we can say, I inherited from him is कि real estate is a very much dynamic market. It is not static as we see uh, different asset classes. Like gold के prices बढ़ रहा है तो उसके अंदर बहुत सारे factors होंगे शायद जो आपको पता भी नहीं होंगे. But real estate particularly आपको ऐसा लगेगा कि with time it will grow, but it's not like that. उसको भी बहुत सारी चीजें चाहिए कि आसपास डेवलपमेंट हो या कुछ इंटरेस्ट रेट में चेंज आए। अब ये सारा नॉलेज जो है, ये रियल एस्टेट आज इवॉल्व नहीं हुआ है। इट टुक ऑलमोस्ट मतलब सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग से आई थिंक रियल एस्टेट वाज़ एसेट क्लास और एज़ अ बिज़नेस एट दैट टाइम। लड़ाइयाँ युद्ध के हुए ज़मीनों के लिए। तो आप जब प्रॉपर्टी मार्केट को Mhm. समझेंगे तो उसके लिए आपको उसका पास्ट पता होना चाहिए कि हाउ इट इवॉल्व्ड। Right. सो जैसे बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए, इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टाइप से इंडिया में तो तभी हुआ वी कैन से प्राइवेटाइजेशन। तो एक मार्केट में बूम आया, आउटस्कर्ट्स की लैंड्स की वैल्यू बढ़ी ड्यू टू न्यू इंडस्ट्रीज ग्रोइंग ऑन एंड उसके बाद आपने देखा होगा बैंकिंग रिफॉर्म्स आए, तो लोन बहुत ज़्यादा हद तक सस्ता हो गया एक Mhm. तरीके से, लेना अवेलेबल हुआ। तो एंड यूज़र मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी में ग्रो करा। टिल 2004-5 के पहले तक मतलब आप कह सकते हैं कि फिर भी स्लो था। जैसे-जैसे बैंकिंग रिफॉर्म्स और बेहतर होते चले गए, कहीं न कहीं मार्केट ग्रो होता चला गया। अब ये नॉलेज उस समय मेरी एज हार्डली 4-5 ईयर 6 ईयर्स रही होगी, तो मुझे ये
इस चीज़ की समझ अपनी फैमिली से ही मिली। एंड ये आज यदि आप पूछें कि क्या बेनिफिट मुझे करती है, तो आज जब मैं देखता हूँ कि और बैंकिंग रिफॉर्म्स आ रहे हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड्स आर अवेलेबल, इवन यू कैन प्लान योर हॉलिडे ऑन लोन। सो इससे मैं एक राइट। ये कर पा रहा हूँ कि हम लोग एक कैपिटल अरेंज ही नहीं कर पाते, लाइक वी कैन से डाउन पेमेंट फॉर फ्लैट। हमारे पास 20 लाख इकट्ठा होगा, उसके पहले शायद हमने शूज परचेज कर लिए होंगे या कार परचेज कर लिया होगा। तो अब जो बैंकिंग रिफॉर्म्स है वो कहीं न कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है रियल एस्टेट को, बिकॉज़ हमारे पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड इवन दैट थिंग्स कैन बी फाइनेंस्ड फ्रॉम दिस लोन पार्ट। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब ये प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि वो पास्ट का पता है कि पास्ट में बैंकिंग रिफॉर्म्स क्या चेंजेस रहे थे रियल एस्टेट को लेके। So you need to understand the history just to analyze राइट। the future, yeah, or predict the future, we can say. Right, absolutely. And I think aajkal, the mindset that we have probably is that whenever we have to make any sort of, real estate investment, so what we think is कि capital बहुत बड़ा होता है. That there's a huge capital that we need to invest. So how do you Yeah, think कि ये book basically किस तरीके से लोगों के mindset को, shift कर सकती है? How they can encourage, I would say, first time investors. Because, human psychology, or I would say Indian mindset यही है कि yeah. whenever we're इन्वेस्टिंग इनटू समथिंग, सो डेफिनिटली वो एक बहुत ही बड़े कैपिटल के साथ ही शुरू हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, राइट? सो हाउ डू यू थिंक दिस बुक कैन ब्रेक दिस स्पेसिफिक मिथ? I think first of all, the biggest mindset shift that we need right now for a first-time investor is realizing that capital doesn't provide you the confidence, because कॉन्फिडेंस आपको एसेट से ही आएगा। आपको प्रॉपर्टी का यही नहीं पता है कि उसमें रिटर्न कितना आएगा, सो हाउ कैन यू बिल्ड अप योर ओन कॉन्फिडेंस? इवन एज आई सेड इन प्रीवियस क्वेश्चन दैट capital can be arranged in form of loan or a personal borrowing, or राइट। you can borrow it from friends or family. But until and unless you don't know how much return you are going to get from it, so how you are going to invest in it? In world you can see, जैसे आज आप मुझे या आपको ले लीजिए, आपकी सपोज मान लीजिए पेइंग कैपेसिटी 1 करोड़ तक के फ्लैट की है, किसी की 100 करोड़ की भी होगी, बट स्टिल ही इज स्ट्रगलिंग, बिकॉज आपको जब तक ये नहीं पता है कि हाउ मच रिटर्न यू आर गोइंग टू मेक, हाउ यू आर गोइंग टू मेक दैट इन्वेस्टमेंट। सो आई बिलीव राइट। दैट leverage is the only thing that cannot be substituted in this market. Capital can be arranged. It's not this much big deal कि आप arrange ही नहीं कर सकते. You can create a group of 4 5 friends who invest jointly invest in a particular property. It can help you in negotiation and even purchasing raw lands or plots, we can say. But so there are various substitutes to this particular part, but one thing cannot be substituted, that is knowledge, or that is your राइट। prediction ability for this property, I say. No, I think that's absolutely great because again, जैसे कि मैंने बताया that probably there's only one mindset shift that is required in order to encourage such people, right? And जब हम किसी भी specific book में, मैं इस book की ही बात करूँ, so probably we have a lot of practical approaches that we have followed. So I think बहुत clarity मिलेगी बहुत सारे first time investors को, and I think ये बहुत ही अच्छी book होगी for as a manual guide for people who are, who are very spectacle that should they invest, what would be the return. So I think ये सारी चीजों के आंसर्स उनको बहुत इजीली मिल पाएंगे while they refer to the book, and that too in an understanding way, because again इसके अंदर एक बहुत ही engaging story telling करते हुए आपने real life examples डाले, तो ताकि वो और relatable लगे किसी भी reader को, right? And also this book, I what I while I read through it, so what I understood that this book emphasis, understanding people and market psychology, right? So why do you think it is so important in property investment? Uh, Market psychology matters because real estate is all about people ultimately, because they Right. are the end area who are purchasing this property. It's not just buildings. So people don't move unless until there is a powerful emotional driver, we can say. Like if I ask you to shift or migrate to another city, you're definitely not going to make it until unless it's a uh, burden of or something, or a major responsibility due to which you are going to shift to other city. So वी शुड अंडरस्टैंड दैट हर सोसाइटी जो कहीं न कहीं डेवलप होती है, उसके कारण कहीं न कहीं वहाँ के लोग होते हैं। जैसे कि आप जिस भी शहर को बिलॉन्ग करते होंगे, आपने वहाँ पे एक चीज़ देखी होगी, एक ओल्ड सिटी होगी जिसे हम कहते हैं, एंड एक न्यू सिटीज़ होगी जिसमें ब्रॉडर रोड्स होंगे, बेहतर सीवर नेटवर्क होगा। सो और एक तरफ ओल्ड सिटीज़ होगी जहाँ पे नियर बाय विसिनिटी में मार्केट होगा, बट यू कैन नॉट इवन पार्क योर व्हीकल एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। अब ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन ओल्ड मार्केट में रुक गए हैं या नए Mhm. मार्केट में नहीं। सो इट अब आपने यदि कोई
ओल्ड सिटी में यदि कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, तो यू शुड कीप इन माइंड दैट यूज़र जो चाहता है हर चीज़ उसकी एक्सेस में वॉकिंग डिस्टेंस पे उसके पास सब कुछ हो। एंड वहीं जब आप एक सिटी का इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे, तो आप सोचेंगे कि कार वाला यूज़र वो चाहेगा कि मॉल्स हो तो उसके पास पार्किंग हो, क्लिनिक यदि आप वहाँ पे खोलेंगे एज़ अ डॉक्टर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फॉर क्लिनिक पर्पज़ आपने कोई शॉप या प्रॉपर्टी बाय करी है, तो उसमें व्हीकल की Mhm. पार्किंग होनी चाहिए, वहाँ के ज़्यादातर कस्टमर वैसे होंगे। So the whole thing depends on the psychology of people that are Right. living in that particular area. So psychology develops the locality, I believe, rather than any other thing. Absolutely. And I think this book talks about both success and failures, right? So, Yeah. what I would like to know from you is that what was that one failure that, taught you the most valuable lesson in terms of estate? Yeah. In real estate, actually, mistakes are incredibly costly. If I consider my own example, so I made an investment almost in 2000. We can say my dad did that investment, and it took almost 25 years just to come out of that business. Even we are not profitable, we can say, though it's not a lot loss making statement too, but टाइम लगा। अब 20 इयर्स आप सोचिए कि आपके 15 लाख कभी कहीं उलझ गए और 15 साल के लिए, 20 साल के लिए फँसे हुए हो पैसे वहाँ पे एंड इसके बाद यू आर गेटिंग अ रिटर्न ऑफ 16 लाख। सो क्या वो रिटर्न उतना वर्थ इट है? एट लास्ट वी कंपेयर रिटर्न्स ऑन बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, हाउ मच टाइम Right. या इट इज़ स्टक इन दिस डील। Mhm. तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट में जब आप वो सेम रिपीट मिस्टेक्स यदि मैं करूँगा, तो मैं अपनी ग्रोथ कैसे देखूँगा? मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि इफ आई कंसीडर माय सेल्फ एनीवेयर नियर टू एफडी आल्सो कि एफडी का रिटर्न भी शायद उस समय उससे बेहतर होगा। सो मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है कि एक गलती आपके वो प्रॉपर्टी, कपड़ा या गाड़ी जैसे नहीं है कि 5-10 लाख में कुछ हो जाएगा। आपके एक ही बार में 50 लाख, 1 करोड़ शायद हो सकता है कई लोगों की तो ज़िंदगी भर की पूँजी अटक जाती है, मैंने देखा है। और Mhm. तो इस मुझे ऐसा मानना है कि सीखना चाहिए मुझसे और रिपीट नहीं करना चाहिए एटलीस्ट हमें तो। या Absolutely. And what are the common mistakes that you feel कि जो नए investors हैं they usually make? Because again, आपने अपने experience के साथ सीखा है. आपने देखा होगा कि while you are seeing a lot of new people are making या investment. तो एक क्या common practice है? क्या एक common mistake है? Which people can keep in mind. मतलब definitely अगर आप share करेंगे insights, तो before investing, we as an individual, I would say, can keep in mind before doing it. So इन yeah. इंडिया in India, we can see the whole country is emotional. We do all kind of our decisions on basis of emotional basis. Like हम निवेश करेंगे तो हमारा एक ही, जैसे मैंने कहा कि बच्चे की शादी हो जाए या मेरा इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट पे मुझे अच्छा पैसा मिल जाए, हम प्रेजेंट में नहीं जीते, हम कहीं ना कहीं अपने भविष्य को सिक्योर करने में लगे हुए हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देना चाहते हैं। तो सेम वे में जब हम प्रॉपर्टी परचेज भी करते हैं ना, तो हम अपने इन्वेस्टमेंट में अपनी एस्पिरेशंस तलाशने लगते हैं। जैसे for an example, you invest in a office space or commercial space, Right. so what you will try to do युक्ता कि आप उसको अपने हिसाब से डिजाइन करने लगेंगी कि डायरेक्टर बिल्कुल। का कैबिन इतना बड़ा होना ही चाहिए या स्टाफ के लिए मैं इतनी सुविधा दूंगी। पर आप ये भूल जाते हैं कि एट लास्ट इट्स अ प्रोडक्ट जो आपको किसी न किसी कस्टमर को सेल करना है या कोई ना कोई और एंड यूजर का होगा। सो आप इकोनॉमिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है, किसी एक चीज के बायर बहुत ज्यादा होंगे तो आपको प्राइस पॉइंट एक तो अच्छा मिलेगा, दूसरा हुँ, लिक्विडिटी हुँ। बहुत जल्दी आ जाएगी, लिक्विडेट हो पाएगी प्रॉपर्टी। बट हम क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से उसको डिजाइन करने लगते हैं। कई बार मैंने मतलब ये देखा है पर्टिकुलरली फॉर वाइफ्स जिनका घर को सजाने में या डेकोरेट करने में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो यदि हस्बैंड कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, तो शी यूज्ड टू गाइड हिम कि अपन कलर ये वाला करा लें या ये चीज करा लें। बेस्ट दे ट्राई फॉर टू डू एवरीथिंग फॉर देमसेल्व्स। अब ऐसे में क्या होता है, आप कॉस्ट को धीरे-धीरे इंक्रीज़ करते जाते हैं एंड डिज़ाइन एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो सबका अलग-अलग है। आपको कुछ हुँ, और हुँ। कलर पसंद है, मे बी डिफरेंट यूज़र को कुछ और होगा। तो ऐसे में आपने प्राइस बढ़ा दी, वो भी उस चीज़ की जो इसके लिए यूटिलिटी उसके लिए कुछ भी नहीं है। मे बी यू लाइक व्हाइट बट ही डज़न्ट लाइक इट। सो क्या होगा? आपके वो पैसे भी गए, आपका रिटर्न भी उस वजह से कम हुआ और मे बी शायद वो उसे डिसलाइक कर जाए क्योंकि वो उतना लॉस भी मुझे एक मुझे तरीके से। हाँ, समझ ही नहीं पाए। सो यू शुड प्रोवाइड अ वाइड कैनवास टू द एंड यूज़र और द नेक्स्ट बायर कि उसको समझ में आए, उसको विजुअलाइज़ कराने में हेल्प करिए ना, रेदर देन इमोशनली गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन ईच एंड एवरी डील। सो दैट्स आई बिलीव।
Absolutely. And also, as your background, combines engineering, law, investment. So, how does this multidisciplinary perspective, helps you in evaluating properties? When I started my journey, I would say I used to buy scraps of property, like we can say who has a negative marginal utility. जैसे आपने कई जगह देखे होंगे, कई पुराने से घर होंगे जिनको कोई परचेज नहीं करना चाह रहा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपल थिंग कि लोग उसकी एस्थेटिक पसंद नहीं कर रहे। बट व्हाट आई फाउंड कि उन मकानों में प्लॉट की वैल्यू में आपको मकान मिल जाते थे। सो इंजीनियर माय इंजीनियरिंग डिग्री हेल्प मी इन अंडरमाइनिंग द एसेट केयर। इसके अंदर है वैल्यू। यदि रीस्ट्रक्चरिंग की जाए तो स्ट्रक्चर मुझे ऑलमोस्ट फ्री पड़ रहा है, जिसको आज मैं रिकंस्ट्रक्ट करूंगा तो एट दैट टाइम द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वाज आई थिंक 1000 और 1200 रुपीज पर स्क्वायर फीट हियर इन भोपाल। सो आई बॉट दोस प्रॉपर्टीज। अब मुझे वो ऑलमोस्ट निल में पड़ी, तो वो जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट थी वो तो वही मेरा प्रॉफिट था। सो इंजीनियरिंग हेल्प मी इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। Mhm. एंड एज आई से लीगल हेल्प मी to analyze the property in legal perspective, like what are the tax liabilities on those particular property, लीगल टाइटल के क्या इश्यूज हैं, फ्यूचर में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और लाइबिलिटी उस पे क्रिएट हो जाएगी, आ जाएगी। एंड इन्वेस्टर ऐसा है तो इन्वेस्टर तो कैलकुलेशन व्हाट विल बी द टैक्स लाइबिलिटीज, हाउ मच रिटर्न आई एम गोइंग टू मेक इट, व्हाट शुड बी द बोरोइंग कॉस्ट और कैपिटल की क्या होना चाहिए मेरा। तो ये सब फैसले लेने में मदद करती थी। बट जैसे आपने बुक में भी रीड किया होगा तो वी मेंशन कि यू डोंट नीड दिस क्वालिफिकेशंस टू परस्यू दिस करियर। आपकी जैसे युक्ता फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में Mhm. काम कर रहे हैं, तो आपको एक आइडिया होगा कि कैसा जॉब कल्चर चाहिए एम्प्लॉइज को रिटेन रखने के लिए। जैसे आज की डेट में लेबर टर्नओवर एक बहुत बड़ा मेजर इशू है इंडस्ट्रीज में। और Mhm. उसके अलावा आपने देखा होगा कि पार्किंग स्पेसेस जो कहीं ना कहीं कोई उसका ध्यान नहीं रखता, बट एक मेजर प्रॉब्लम है। तो आप जब कल को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो शायद आप मुझसे बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक Mhm. आइडिया होगा कि 20-30 पीपल के टीम को कैसे ऑफिस में रखा जा सकता है जो बेस्ट हो, एंड किसका इंप्रेशन एक क्लाइंट पे अच्छा पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि ये मेरे स्किल सेट मेरे काम आ रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। बट आपका जो स्किल सेट होगा वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको उसका कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस में वो आपके फिट हो चुका है। तो आप वैसी ही प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट करें। एंड मेरा स्किल सेट वो अलग है, पर आपका स्किल सेट डेफिनेटली आपका काम कर जाएगा। एंड प्रॉपर्टी में सबके लिए स्कोप है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। सो आई थिंक ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन टू पर्सन भी बहुत ज़्यादा डिपिक्ट करते हैं। या एंड द बुक इज़ आल्सो हाइलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल नॉलेज एंड नेटवर्किंग। सो हाउ कैन इन्वेस्टर्स, बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स इन रियल एस्टेट? सो आई थिंक नेटवर्किंग किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं रियल एस्टेट बिज़नेस की के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाहूँगी। एक्चुअली in real estate market every property is unique. There is no substitute for a particular हुँ, हुँ। property. एक फ्लैट वेस्ट फेसिंग हो सकता है, दूसरा ईस्ट ही फेसिंग होगा। मतलब वो सेम नहीं हो सकते, लोकेलिटी कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कह लीजिए, हुँ, डायरेक्शनल डिफरेंस कह लीजिए। सो अब ऐसे में यदि आपको कोई डील बेस्ट है तो वो सबसे हुँ, पहले आपके पास आए, दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट टू यू। बट राइट। ऐसे कि दोस्ती हम किसी से चाह के नहीं कर सकते, वो हमारे कॉमन इंटरेस्ट पे होती है। जैसे सपोज इफ यू हैव इंटरेस्ट इन रीडिंग और राइटिंग, देन मे बी इफ आई आल्सो हैव द सेम इंटरेस्ट, तो हमारी कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप हो सकती है ड्यू टू दिस थिंग। सो वैसा ही रियल एस्टेट में है। यदि आप रियल एस्टेट के बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो एंजॉय दिस बिजनेस, विजिट हुँ, हुँ। प्रॉपर्टीज। एटलीस्ट एक एक रूल बनाएं कि अपने वीकेंड में 2 से 3 प्रॉपर्टियां विजिट करें। तो उससे धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो उस मार्केट में है उनसे आपके कनेक्शन होने लगेंगे। एंड इवन इफ यू गो टू अ पार्टीज और एनी थिंग लाइक सोसाइटी मीटिंग्स, so you will start having conversation regarding real estate only because वही चीज है जो आप अभी परस्यू कर रहे हो, देख रहे हैं, एंड आप उसमें उसका इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं लाइक माइंडेड पीपल आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, जो ऑटोमेटिकली आपके पास में डील्स का फ्लो लेके आएंगे। एंड रियल एस्टेट में पर्सनल कनेक्शन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट कोई अननोन आपके कहने पे नहीं लगाएगा। एंड इफ यू आर हुँ, ट्राइंग टू हुँ। कम्पीट विद काइंड ऑफ बिल्डर और समवन एल्स हु हैज अ मार्केटिंग बजट, तो आप कैसे टिकेंगे? आप 1 या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सामने आपके वो आदमी है जिसका 1-2 करोड़। सो आपके कनेक्शन ही आपके काम आएँगे, प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए और मे बी सेल करने के लिए, क्योंकि एक पर्सनल ट्रस्ट डेवलप हो जाता है विद टाइम, और वो ट्रस्ट आपके नॉलेज के बेसिस पे ही हो सकता है। नॉलेज अगेन एज़ आई सेड कि घूमने से ही आएगा। तो आप बस एन्जॉय करिए इस बिज़नेस को, ऑटोमैटिकली कनेक्शंस विल बी बिल्ट। Absolutely. And also, I would like to know that what is that one practical method through which investment can, use to identify undervalued properties?
Okay, for that, as in a previous question, I said I bought a property at a rate of plot. The building was there, and it was sold at a price of per plot in that particular area. So आपने देखा होगा कि मैंने वैल्यू ढूंढी स्ट्रक्चर में. सेम वे में यदि स्टेट सब्जेक्ट होता है पहली चीज तो रियल एस्टेट, तो लोकल स्टेट के लॉज होते हैं, लाइक म्यूनसिपल लॉज होंगे वहाँ के, जो कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज को शायद परमिट करते होंगे उस पर्टिकुलर एरिया में. सो आपको ये देखना होगा कि यदि कोई प्रॉपर्टी एग्जाम्पल के लिए 3 लाख रुपए रेंट जनरेट कर रही है, 3 लाख रुपीज रेंटल यील्ड, देन आप उसका यदि कोई डिफरेंट यूज कर पाते हैं, एंड नाउ द रेंटल यील्ड वुड बी 6 लाख रुपीज, एंड एक एवरेज यदि अपन लेके चले कि हम ऑन बेसिस ऑफ एफडी रेट्स वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, तो आप देखिए 3 लाख के हिसाब से भी उसकी प्राइस एक्स हो रही होगी, तो डेफिनेटली वाई उससे बड़ा ही होगा. आपने 6 लाख के इन्वेस्ट रेंटल यील्ड उसमें डेवलप कर पाते हैं. सो ये फाउंड द अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी, बिकॉज रियल एस्टेट में कोई एमआरपी नहीं है युक्ता. सो अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड डिटरमाइंस कि आप उसका कितना बेहतर यूसेज कर पा रहे हैं. सो आपकी समझ काम आएगी आपके इस चीज में, तो देखते एब्सोल्युटली. देखते जी. ऑल्सो सर, आई थिंक जैसे जो रियल एस्टेट की मार्केट है, इट इज वेरी, आई वुड से इट्स नॉट, द रिजल्ट्स आर नॉट वेरी फास्ट, राइट? दीज आर स्लोली. एंड मतलब किसी भी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट की, अब जैसे मैं गोल्ड की भी बात करूँ, प्रॉपर्टी की बात करूँ, तो द इन्वेस्टमेंट रिटर्न आई वुड से इज लिटिल स्लो. So how can Yeah. investors stay patient during, and I would say focused on long term growth? What is that one mantra that you would like to give? Okay. Real estate cycles, if you are talking about, are very much dependent on capital flow and human behavior, we can say. As you have seen in the COVID time period, the only facilities that were working were grocery, essential items, we can say, and medical facilities. तो क्या हुआ जब एक पूरा मार्केट बंद था, लाइक वी कैन से प्रिंटिंग इंडस्ट्री, जो मैगजीन्स वगैरह है नॉर्मल प्रिंटिंग में रहते हैं, और एनी अदर इंडस्ट्री, सो उनके अंदर एक कहीं ना कहीं फियर फैक्टर था, एंड उनका बिजनेस लूज हो रहा था. एट द सेम टाइम देयर वाज अनदर क्लास ऑफ पीपल हु वर जनरेटिंग मनी एट दैट टाइम. तो आपने उसके बाद देखा होगा हॉस्पिटल्स की एक तरीके से फ्लड टाइप का आ गया, तो जो हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी पड़ी. सो उसमें एक फैक्टर सोचने वाली बात थी, किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के पीपल के पास में कैपिटल का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए, तब वो साइकिल Right. कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है. अब वो कैपिटल फ्लो करेगी तो नियर बाय एरियाज में ही फ्लो करेगी. अब ऑब्वियस बात है, आपकी प्रॉपर्टी बिकी तो आप वो पूरा पैसा यूज तो करोगे नहीं, कि पूरा कार परचेज कर लिया, यू हैव कंप्लीटली पूरा ही कंज्यूम कर लिया वो पैसा. कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप भी फ्यूचर में या नियर बाय एरिया में उसको इन्वेस्ट करेंगे. सो दिस वे दिस साइकिल वर्क. एक्चुअली एक पहला कैपिटल का बड़ा फ्लो चाहिए ही चाहिए. एंड उसके बाद आपने देखा होगा कि हम लोग फिर क्या करने लगता है, हमें लगता है क्या रेट्स हाइक हो रहे हैं एंड वी आर मिसिंग आउट, तो हम जैसे एंड यूजर या रिटेल इन्वेस्टर कह लीजिए उसके अंदर पैसा लगाने आते हैं. बट राइज होने की कैपिटल एक सीलिंग लिमिट होगी ना. एज आई सेड कि लंदन से कोई आके कानपुर या लखनऊ या कहीं पे प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा, आपके लोकल का ही पर्सन खरीदेगा. तो लोकल बिजनेस की एक पेइंग कैपेसिटी है, लोकल पर्सन की एक परचेसिंग पावर है. तो परचेसिंग पावर को जैसे ही वो स्ट्राइक कर जाती है प्रॉपर्टी का रेट, तो आप देखते हैं कि स्टेगनेशन आ जाता है. अब वो नेक्स्ट ग्रोथ जो है वो अगले 5-7 साल तक नहीं आएगी, जब तक महंगाई उतनी ना बढ़ जाए या एक Mhm. तरीके से आपके पे स्केल उतने लेवल तक राइज ना कर जाए. तो वो स्टेगनेशन के पीरियड में यदि हम फंस जाते हैं तो हम बोलते हैं साइकिल रुक गई. बट एक्चुअली क्या, हमने गलत टाइम पे वो डिसीजन लिया. हमें वेट करना चाहिए तब तक का जब आपको ये समझ में आए कि यार एक पैसा कहीं न कहीं से किसी के पास आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए. उस टाइम तक आप डील में इन्वॉल्व रहिए. और स्टैग्नेशन का मान लीजिए इन केस पीरियड भी आ जाए, फॉर एंड यूजर आई विल सजेस्ट कि बाय अ प्रॉपर्टी दैट कैन प्रोवाइड यू एटलीस्ट सम काइंड ऑफ रेंटल यील्ड. आप Right. रैंडम लैंड पे मत लगाइए, क्योंकि जजमेंट आपको एक दिन में नहीं आएगा. इट टेक्स टाइम. सो टिल दैट टाइम मेक अ सिक्योर इन्वेस्टमेंट. देखिए, आपका रिटर्न 20% हो, किसी का 50% हो, इट डजंट मैटर. बट आपकी पूंजी ही 1 करोड़ है, वो पूरी उलझ गई है 50% के चक्कर में. सो याद रखिए कि Right. आप अपनी कैपिटल वाइप आउट कर देंगे. वो नहीं करना चाहिए, आई बिलीव. Absolutely. And also, one last thing that I would like to ask कि अगर किसी भी specific reader को सिर्फ एक principle, if anybody gets a chance to apply one principle from Rio Economics, so which one would you recommend? That one principle is treat property like an individual. The moment you start having conversation with property, ना, it is going to give you benefit. देखिए, एट लास्ट रियल एस्टेट इज मदर अर्थ. एक यूनिकनेस है उसकी, हर प्रॉपर्टी की एक वैल्यू होती है. जैसे मैं कई प्रॉपर्टी के डिसीजन जब लेता हूँ, तो मैं शायद आपको कन्वे ना कर पाऊँ कि मैं प्रॉपर्टी क्यों बाय कर रहा हूँ. बट
जब मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे कुछ चीज़ें फ़ील होती हैं, एंड वो फीलिंग एक ये ऐसा है कि आपका गट, आपका एक्सपीरियंस आपको बोलता है। सो समटाइम्स लाइक आई हैव रेड अ बुक इन एचबीआर की गट वर्सेस लक। सो जो गट फीलिंग होती है, जो हमें लगता है कि यार हम लकी थे उस समय पे, वैसा नहीं होता है। वो आपके बैक ऑफ द माइंड की प्रोसेसिंग रहती है, जो प्रोसेस कर चुकी रहती है इन्फॉर्मेशन को कि हाँ, ये डील वैसी है। तो अंटिल अनलेस यू फील फॉर दैट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मार्केट इज़ अ मैच मेकिंग बिज़नेस वी कैन से। आप किसी को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप उसका परफेक्ट मैच उसको कैसे दिलवा पाएँगे? कि यार ये एंड यूज़र है, इसको ये चीज़ चाहिए रहेगी। तो आप प्रॉपर्टी को समझिए, बात करिए, घूमिए, उसको एन्जॉय करिए, तो ट्रीट इट लाइक अ ह्यूमन, सो यू कैन डेफिनिटely get benefited. Any last few words, any advice that you would like to give to the audience, and anything that you would like to share, sir? Uh, the only advice is always invest in real estate. At least a bit amount you should invest. What why I'm telling you this thing that देखिए, आपका निवेश कोई मेरे पास नहीं आएगा। एज़ आई सेड कि वो बहुत लोकल है, आप वहाँ करेंगे तो मेरा उससे क्या बेनिफिट होगा? बट दिस विल मेक यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग, आई फील। जैसे मैंने जब ये चालू किया था, तो छोटी-छोटी चीज़ें लाइक हम कर लेते हैं ना युक्ता कि पार्किंग कहीं पे भी ओपन में पार्क कर दे रहे हैं, गार्बेज है थ्रो कर दे रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बट जब आप प्रॉपर्टी का बिज़नेस में करोगे, तो आप जब आपके साथ ये चीज़ होगी ना, तो यू विल फील कि यार ये गलत है, एज़ अ सोसाइटी ही गलत है, या उस प्रॉपर्टी का कितना नुकसान हो रहा है, वो बिक नहीं पा रही है रोड सप्लाई होने की वजह से, जो शायद किसी आदमी का एनक्रोचमेंट है। तो ये टाइप की चीज़ें आपको धीरे-धीरे एक बेटर ह्यूमन बनाएँगी, एंड ट्रस्ट मी, जैसे-जैसे आप में इम्प्रूवमेंट होएगा, आपको प्रॉपर्टी के मार्केट से भी ऑटोमैटिकली ये बेनिफिट मिलेगा। एट लास्ट रिटर्न इज़ ऑल अबाउट मैनी गुड थिंग्स, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। सो आप जब ये करते जाएँगे, तो आपको लाइफ में इतना टाइम, प्लेज़र एंड इतना कंफर्टेबल लेवल पे पैसा मिलेगा कि यू विल नॉट डू एनी अदर जॉब। सो जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग। किसी के भी साथ करें, आप कैसे क्लास में करें, बट करें। बिकॉज़ इफ आई टेल यू माय एग्जांपल, आई वर्क हार्डली 30 डेज़ इन अ ईयर, सो इवन दैट इज़ सफिशिएंट फॉर मी। सो टाइम ही है एट लास्ट, लाइफ इज नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम टाइम। तो आपको इतना पैसा जरूरत का दे सकती है कि आपके पास समय पूरा हो जिंदगी में जीने के लिए। सो Absolutely. So I think thank you Varnik, आपने जो भी insights share करे that has been truly amazing, because I think किसी भी एक first time investor के लिए, if people are very unsure that does this actually really helps, and I think this book is again I would say a practical approach, a guidebook for all the first time investors, because I think this would be a very grateful thing. So yes, everybody, the link is right there in the description box. If you would like to grab your copy, the book is available in both e-version as well as the paperback version, right? So you can quickly grab your copies now. So Varnik, thank you so much for joining. It was lovely connecting with you, and I think आपने जो भी सारे practical approaches follow करी for first time users और people who are already investing, so I think ये दोनों के लिए बहुत beneficial थी, because again हर इन्वेस्टमेंट एक नई इन्वेस्टमेंट होती है. सो यस, पीपल कैन मेक यूज ऑफ दोज एडवांटेजेस, दोज इनसाइट्स जो आपने अपने एक्सपीरियंस से शेयर करी है. सो या, थैंक यू सो मच वार्निक थैंक फॉर यू, जॉइनिंग. एनीथिंग दैट यू वुड थैंक लाइक टू यू, से? नाइस टॉकिंग टू यू, एंड इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस विद Adyan Books too, for ग्रेट. helping in publication and this launch event. Thank you for this थैंक यू opportunity. वार्निक. थैंक यू so much. Thank you. So, thank you everybody for joining. Last few words that I would like to say: Reonomics reminds us that successful investing is not just about numbers, it's about observations, patience, relationships, and informed decision making. So, if you are a first time investor, a business owner, or simply just curious about real estate, this book offers everything. So, go grab your copies now. The purchase link is right there in the description box. Thank you so much everybody for joining. We will be back again with another book launch event. Till then, please like, share, and subscribe. Thank you.